Okay, my screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We were left with some of the instructions to be completed. So today itself I will complete. The other instructions I will be giving you as a homework or as an assignment. Okay. And today I'm planning to give you assignment number 1. So please try to complete the assignment. So you can type or you can write by your own. You can write by. It should be handwritten also चलेगा. Otherwise, if you want to type, you can type. Okay. अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो you scan it and just upload as an assignment. I will be giving you the deadline. Within the deadline, please submit the assignment. It will be the assignment number 1, and this assignment number 1 will be concerned with module number 1. Okay, module number 1. And if there is unit test, because till now we haven't decided when will be the unit test and what could be the format, how are we going to take the unit test. So in the unit test, as far as concerned, if it is MCQ questions, okay, mostly there will be MCQ questions. अगर हम MCQ को टेस्ट रखते हैं, then I will include module number 1 and module number 2. Okay, in that case you should be able to understand the instruction set also. So already we have covered the first module, and the second module we have started the instruction set. So as far as assignment number 1 is concerned, I will include the questions from module number 1 and few questions if it is possible I will take from the instruction sets. So in the instruction sets जो मैं instructions नहीं ले रहा हूँ, those questions will be included in the assignment number 1. So please take note of this. So as far as this instruction sets are concerned, till what we have completed the instruction, I have taken the shift left, shift right. Whether I have taken the rotation, rotate right, rotate left. नो सर, आपने ये नहीं लिया था. Yes, any one of you? नो सर, आपने सिर्फ शिफ्ट तक ही लिया था. हाँ ये शिफ्ट SHR and SHL लिया था. SHR and SHL. यस सर. ये वाला लिया था ना मैंने. हाँ, okay. Now we'll go with the next logical instruction. This is the RCR. RCR, that is clockwise rotation towards the right, and RCL clockwise rotation, or it is only the rotation towards the left. Okay. Now you have to remember whatever I have explained you in the shift right and shift left. Okay. In that respective, you have seen that only there were the left shift. If you see this, so whenever I have talked about the left and the right shift, you can see there is a left shift. There is a just a minute. There is a left shift. There is a left shift. Okay, and this MHD shifted towards the CF. That is a carry flag. So carry जो भी MHD में है, that is shifted to the carry flag. Okay. And whatever is in the B6 is shifted to the B7. Then B0 will be shifted to B1. So whatever is the place which is vacant after the shift, that is occupied by default value, that is 0. By default value, that is 0. Okay. So this is for the 8-bit shift. And whenever I'm talking about the 16-bit register or the memory of 16-bit, okay, in that case, you have to see that the MSD will be shifted towards the control flag, carry flag, and the LSD will be occupied by default 0. Now here the instruction is either SHL memory or SAL memory. Okay, SHL memory or SAL memory, there is only one difference between them, is that whenever you are shifting towards the left, okay, whenever you are shifting towards the left, it will be shifted by only 1 bit. It will be shifted by only 1 bit. It will be shifted by only 1 bit. Okay, and whenever you are shifting using the SHL and with the CL value, if I want to shift more than 1 bit, then you have to load that number. कितने bit से आपको shift करना है? That number has to be mentioned in the CL value. Okay, CL value is what? CL is the lower
8-bit of register, because you know that CX, and mostly this CX register is used as a counter. So that is why CX is also called as a counter register. जैसे हम AX को क्या बोलते थे? Accumulator. जैसे हम AX को क्या बोलते थे? Accumulator. Similarly, CL को हम बोले CX को हम बोलेंगे काउंटर रजिस्टर, बिकॉज अगर हमको कुछ भी काउंट करना है या फिर वो काउंट हमको किसी कंडीशन में यूज करना है, तो दैट काउंट वैल्यू विल बी लोडेड इन द CX वैल्यू. नाउ हियर I am using the CL value. Okay, in the CL value I'll be using 8-bit. So you can have the shift of 2, 3, 4, 5, 6. So that value has to be mentioned in the CL. That value has to be mentioned in the CL. Okay, so that is the meaning of this SHL or SAL. So you can use either with SHL or SAL. Here also it is left shift and SAL. Okay. So one more important thing about SAL, whether I have given you in the writing for SAL. SAL के बारे में मैंने कुछ लिख के दिया है? सर आपने ऐसे 4 के लिए दिया था, Okay. ऐसे 6 का नहीं दिया सर आपने. अच्छा, उसके लिए नहीं दिया है? नो सर. Okay, you just write down. Please write down SAL or SAL. Just write down SAL instruction is used. SAL instruction is used if I don't want the shift, if I do not want the shift, through the carry flag. If I do not want the shift through the carry flag. If I do not want the shift through the carry flag. If I do not want the shift through the carry flag. इसका क्या मतलब है? Now see here all of you. इसका मतलब ये है कि if I have to have the shifting of the bits, okay, तो B7 carry flag में जा रहा है. लेकिन अगर मुझे चाहिए कि B7 should not go to carry flag, okay, then this B7 will be moved into the B0. Okay, will be moved into B0. That thing we'll see after in the rotation shift. So what I mean to say that यहाँ पे जो भी कुछ shift हो रहा है ना, left shift, that is happening through the carry flag. And if I do not want it should happen through the carry flag, that means MSD value will move into LSD value. Okay, so there is no CF and there is no 0 by default, which will be moved into LSD. Okay, अभी यहाँ पे क्या है? The scenario is that you have carry flag also and you have the default value 0 also. But whenever you do not want that carry flag and the 0, by default value should move into B0. In that case, we will neglect the carry flag and B7 value will move into LSD. This is for the left shift. Okay, this is for the left shift. Okay, so always remember, whenever you have to go to the shifting through the carry flag, you will go with SHL. You will go with SHL. Okay, and without carry flag, you can directly go with SAL. That means the shifting will be happening without through carry flag. Okay, so that is the meaning of this. And one important thing, what value you can include in the CL? I have already told you the decimal value from 0 to 255. The decimal value from 0 to 255 can be stored in the CL register, which already I have given you. Okay, so such type of Viva questions also can be asked. What is the range that value we can store into the CL? By default, if I want to shift by 1 bit, it is okay. But if I want to shift by 2, 3, 4, 5, 6, so till what value I can go? I can go with 255 value. That is the meaning of this. Okay. Then we'll go to the rotation. अभी यहाँ पे क्या difference? डाउट है. हाँ. सर SHL और SAL अलग अलग है क्या? Both are different.
तो बोथ आर बट डिफरेंट। सर जैसे हमने आपने बोला सर वो B7 है, वो B0 में मूव हो जाएगा, तो वो तो सर हाँ रोटेट ही हो गया ना फिर तो। नहीं नहीं, लेकिन आपको अगर रोटेट कर दिखना है ना, कैन यू सी हियर प्रॉपरली, दैट इज थ्रू CF। यहाँ पे दिख रहा है CF। मैंने उसमें क्या बोला था, हाँ सर, विदाउट CF। मैंने क्या बोला मतलब था, विदाउट CF। ओके, तो मतलब सर SAL मतलब रोटेट विदाउट CF। हाँ यानी देर इज नो रोल ऑफ CF। कैरी फ्लैग हम वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो वहाँ पे MSD की वैल्यू LSD में जाएंगी, और LSD और बाद में जो नेक्स्ट बीट है वो LSD में जाएगा। ओके सर, एक डाउट, सर एक और डाउट है सर, जैसे हम हाँ लोग ने SAL देखा वो लेफ्ट शिफ्ट के लिए था, ऐसे राइट हाँ, शिफ्ट के लिए SAL से के जैसा कोई इंस्ट्रक्शन है क्या? दैट इज आप ये लेफ्ट के लिए कर रहे हो, दैट विल बी फॉर SAR। दैट विल बी फॉर SAR। ओके ओके सर। हाँ दैट विल बी फॉर SAR। ओके, तो फॉर SAL, that is L stands for left. So if you type for SAR, it will be for right shift. Okay, यस सर। is it? हाँ. So always remember the count value will be taken into the CL register. आप यहाँ पे BL नहीं ले सकते, आप यहाँ पे AL नहीं ले सकते. Okay, always remember this is a dedicated register CL, which is mostly used for the count value. तो आप बोलेंगे सर मैं वहाँ पे BL ले सकता हूँ क्या, AL ले सकता हूँ क्या, तो हम नहीं ले सकते, वहाँ पे हम नहीं ले सकते. ओके, so we'll move further. Now this is RCR. So RCR register, this is the in general the instruction. You can take the register value or you can take the memory. Okay, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा? See here, this is a right shift, but the rotation अभी रोटेशन क्या है? This is through the CF value. B0 की जो B0 में जो डेटा है और जो बाइनरी नंबर है, that will be shifted into the CF, and CF में जो है वैल्यू, दैट इज कैरी फ्लैग में जो वैल्यू, दैट विल बी मूव इनटू B7. अभी यहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमारा जैसे लेफ्ट और राइट शिफ्ट में हमारा बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू थी जो B7 में जाती थी. यहाँ पे 0 वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशन. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशन. सो दिस इज फॉर द रोटेशन RCR. Okay, right, this is for right shift. So that's why you can see the arrows are shifting towards the right, तो यहाँ पे मैं जनरली क्या बता सकता हूँ कि LSD में जो भी वैल्यू है दैट इज शिफ्टेड इनटू CF में जो भी वैल्यू है दैट विल बी शिफ्टेड इनटू MSD, और बीच वाले जो नंबर्स है वो क्या होंगे? N-1 विल बी शिफ्टेड इनटू द नेक्स्ट N वैल्यू. N-1 और N का मतलब क्या है? B6 will be shifted into B5. B6, N-1 is 6, so N-1 अगर 6 है तो N की वैल्यू रहेंगी 5, so B6 will be shifted into B5. That is again. Okay. Similarly, if I do not want to take the register, you can take the memory. If I do not want to take the register, you can take the memory. Okay. So for memory, this is the instructions I have. If I have to shift by 1 bit, you can just mention 1 in the instruction itself. If I have to shift more than 1 bit, यानी एक से ज्यादा अगर मुझे शिफ्टिंग करना है, तो दैट काउंट वैल्यू विल बी टेकन इन डिफॉल्ट इनटू द control register, and which is a specific control register, that is CR. So that is about RCR. सर Similarly, हाँ सर एक डाउट है सर, हाँ मतलब अगर सर हम लोग शिफ्ट ऑपरेशन लगाते हैं काउंट ग्रेटर देन 1 के लिए, तो हाँ, सर वो मूव कैसे करता है? मतलब वो एक से 1 बाय 1 मूव करता है, या फिर मतलब जो स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन उसके एडजेसेंट है वो उसको मतलब से नहीं 2 से मूव वन करना? वन बाय वन नहीं करेगा. अगर CL की वैल्यू हम जो मेंशन करेंगे कि वो हिसाब से वहाँ पे जंप करेगा. अगर CL की वैल्यू मैंने 3 बताऊंगा तो CL, अगर मैं 3 बताऊंगा तो 1 शिफ्ट यहाँ पे, ओके, सेकंड शिफ्ट यहाँ पे, और थर्ड शिफ्ट यहाँ पे. तो हाँ मैं सर, जब मैं CL की वैल्यू 3 बताता हूँ ना, तो वो डायरेक्टली जंप करता है यहाँ पे. ओके ओके सर। हाँ, तो 1 बाय 1 नहीं जाएगा वो. This is happening in the fraction of second. The value which will be describing in the CL value, depending upon that there is a direct shift. आपको ये सब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा. This is a direct jump. तो ये जब CL की वैल्यू 3 है तो B7 गया कहाँ पे गया? B4 में गया. B6 कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा B3 पे. B5 कहाँ जाएगा? वो जाएगा B2 पे.
B4 कहाँ जाएगा, वो जाएगा B3 पे, एंड सो फोर, सो एंड सो फोर। ओके ओके सर, हाँ सर अभी समझा। अभी ये CF कहाँ जाएगा, CF भी कहाँ जाएगा, वो 3 वैल्यू बी जाएगा, वो अच्छा B5 पे 3, जाएगा। B5 यस, इट विल गो टू B5। और CF में कौन सी वैल्यू जाएंगी, B2 की वैल्यू जाएंगी CF में। एम आई राइट? हाँ सर। Yes. So that is about the RCR. You can take the register or the memory. We'll move forward. Now this is similarly for ROL, that is rotation towards the left. Okay. Rotation towards the left. यहाँ पे भी वही है, डायग्राम देखो सिर्फ क्या है. Okay. I am shifting towards the left. That is why I am shifting towards the left. Okay. I am shifting towards the left. So arrow ऐसा दिखाएगा और ये shift जो जाएगा, that will be shifted to the this value. Okay. So that is the way. So there is no more explanation for this. So we have done with the logical instructions. We have done with the logical instructions. Now we are moving to the string operation or string manipulation. So all of you, I want everyone to write down the heading as string manipulation instructions. String manipulation instructions. Okay. This is important instruction. I want everyone to pay attention. The questions can be asked. The theory questions or the Viva questions can be asked. So I want everyone to pay attention. This is important. Okay. Now, string manipulation instruction is mostly associated with the string values. Okay, the string values, but you know that whatever the characters I have, that will be represented in the machine or in the binary form. That is ones and zeros. Okay, so here you have to consider the string, that is nothing but the letters or the alphabets, but ultimately they are in the form of ones and zeros. So it can be a string of 1 byte, it can be a string of word. When I say a string of 1 byte, it means it is 8 bits. If I say a string of word, it is of 16 bits. Okay. So some of the instructions which are dedicated for the manipulation of the string, So which are the different instructions which are used for the manipulation? We'll see. So before that, just read out whatever is written here. The sequence of byte segment जो मैंने अभी आपको बताया. Okay. The sequence of bytes or words, that is 8 or 16 bits. 8086 instruction set includes instructions for string movement. Now see here, I can have the movement of the string. I can have the comparison. I can have the scan. I can load. I can store. I can load and I can store. अब ये load and store specifically, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, कहीं मैं लोड कर रहा हूँ या फिर मैं कहीं स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं कहाँ से उठा रहा हूँ और कहाँ पे डाल रहा हूँ. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, मैं कहाँ से डेटा ले रहा हूँ और कहाँ पे मैं डंप कर रहा हूँ. ओके, सो योर सोर्स एंड द डेस्टिनेशन इज इम्पोर्टेंट. So whenever I will be explaining you the string manipulation instructions, you have to be very careful कि मेरा सोर्स कहाँ पे है और मेरा डेस्टिनेशन कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स आर हैविंग लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन. ओके, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सोर्स कहाँ पे और डेस्टिनेशन कहाँ पे. ओके, सो देयर इज अ जंबल. सो यू हैव टू रिमेंबर कि सोर्स और डेस्टिनेशन कहाँ पे. ओके, नाउ देयर इज अ REP इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स यूज्ड टू रिपीट एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन. अभी ये इंस्ट्रक्शन याद रखना है, REP, रिपीट. REP इज रिपीट. तो मुझे जो भी स्ट्रिंग रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है या फिर जो भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का इंस्ट्रक्शन है, उसके पहले अगर मैं REP लगाता हूं, तो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते रहेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता. तो कंडीशन हमको REP में मेंशन करना है. आई एम रिपीटिंग अगेन, REP इज an instruction which is used as a prefix to the string manipulation instruction. तो जो भी मैं string manipulation instruction लिखूंगा, वो मुझे कब तक एग्जीक्यूट करना है या फिर कब तक मुझे रिपीट करना है, जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है. और वो कंडीशन मुझे कहाँ पे मेंशन करनी है, REP के साथ. तो हम एग्जाम्पल देखने वाले, तब आपको समझ में आएगा. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही याद रखना है, कोई भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को एग्जीक्यूट करना है कंटिन्यूअस, तो हमको REP यूज करना है. इसका मतलब रिपीट.
वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कब तक? जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, और कंडीशन मुझे आरईपी के साथ लगाना पड़ता है, वो कंडीशन मुझे आरईपी के साथ लगाना पड़ता है। ओके, सो विल सी व्हाट इज दैट। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट थिंग है, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस एंड विथ एस। अभी कोई कोई स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है, या फिर आप बोलो हर एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, उसके एंड में अगर मैंने एस लगाया, या फिर उसके एंड में मैंने एस बी लगाया, या फिर उसके एंड में मैंने एस डब्ल्यू लगाया, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि एस रिप्रेजेंट स्ट्रिंग, एस रिप्रेजेंट स्ट्रिंग, ओके, एस रिप्रेजेंट स्ट्रिंग, सॉरी, so here s represents string। तो यहाँ पे जो भी मेरा एस बी है या फिर एस डब्ल्यू है, तो ये एस डब्ल्यू में जो एस लिखा है ना, वो है स्ट्रिंग, वो है स्ट्रिंग। ओके, और बी का मतलब होता है बाइट, बी का मतलब होता है बाइट। और अगर डब्ल्यू लगा है तो डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड। तो इसका मतलब जो स्ट्रिंग जो मैं यूज कर रहा हूँ इंस्ट्रक्शन में, उसकी साइज अगर 8 बिट है तो इट विल बी एस बी, अगर उसकी साइज अगर 16 बिट है तो इट विल बी डब्ल्यू, इट विल बी डब्ल्यू। ओके, तो हमको पता चलेगा कि दैट स्ट्रिंग विच आई एम हैंडलिंग इज ऑफ 8 बिट और वेदर इट इज ऑफ 16 बिट। इफ इट इज ऑफ 16 बिट इट इज डब्ल्यू, if it is of 8 bit it is called as a b, it will be said as a b। and what is about s? S represents the string, s represents the string। so this is for all the string instructions, it is applicable for all the string instructions। okay, the next thing, now this is very important, this is very important, so I am giving you asterisk। see, everything is available in the Nagurkani book। okay, this is the important, so I have given the asterisk। now see what is the meaning of this। मैं जो आपको बता रहा था, source and the destination, source and the destination। now here आपके जो string manipulation instructions रहेंगे ना, उसमें हम कभी भी source mention नहीं करते, हम कभी भी destination mention नहीं करते। तो वो by default source और destination by default defined है, by default defined है। वो क्या defined है? नसी है। The offset or effective address of the source operand is stored in SI register। What is SI? Source index। अभी तक मैंने SI को कहीं पे ज्यादा यूज नहीं किया था, अभी मैं बता रहा हूँ कि as far as string instructions are concerned, you are using your source operand, and that is your SI register, that is your SI register। and where do you see SI register? You see the SI register in execution unit of the architecture of 8086। okay, तो by default हम SI register ही यूज करेंगे, हम by default SI register ही यूज करेंगे as a what? as a source operand। इसलिए इसको कहा जाता है source index register, source index register, that is called as a source operand। और तो destination को कहाँ पे होता है by default? and that of the destination operand is stored in DI register। इसलिए DI को क्या बोलते हैं? destination index। इसलिए मैंने वहां पे कभी भी आपको ये सिखाया नहीं था destination index क्यों कहा जाता है, DI कहा यूज क्यों होता है, हम कहाँ पे, उसका पर्पस क्या है। I never explained you, but this is the time to explain you about the SI and DI register। so whenever the questions are asked in the Viva, or if the question is asked for 5 marks to explain about the SI register and the DI register, now you have the answer with you। mostly whatever the string manipulation instructions are there, okay, so in most of the case the source operand and destination operand are not mentioned in the instruction itself, but by default SI register is used as a source operand and DI register is used as a destination operand। that is the meaning। I hope you have understood, I hope you have understood। Yes, sir। okay, yes। now this is also important, I am putting an asterisk। now depending on the status of DF, SI and DI, ये भी important है। depending upon the status of DF, देखो ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मुझे सिर्फ स्टेटस किसका देखना है, इसलिए मैं देखो इसको सर्कल कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ स्टेटस DF का देखना है, मुझे सिर्फ स्टेटस DF का देखना है। और DF के स्टेटस के हिसाब से क्या होने वाला है
DF के स्टेटस के हिसाब से your SI and your DI registers are automatically updated. Okay, updated का मतलब ये होता है your SI और DI will either, I want everyone to pay attention, this is important. बाद में समझने जाओगे तो नहीं समझेगा. ओके, तो अभी समझो. तो your SI and DI registers are automatically updated का मतलब होता है your SI and DI register will either increment I and C. Your increment will either increment or decrement. Will either increment or decrement. This is DEC by 1. Okay, मैंने क्या बताया अभी? Depending on the status of DF. DF stands for what? Any one of you? It's a directional flag. Yes, it is a directional flag. तो आपके जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में अगर कुछ मैं कंडीशन यूज करता हूँ तो यू हैव टू मॉनिटर द डायरेक्शन फ्लैग. ओके, क्योंकि हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में कौन क्या करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, ओके, हम स्कैन करते हैं, हम लोड करते हैं, हम स्टोर करते हैं. लेकिन ये कब तक मूवमेंट करना है, ये कब तक कंपैरिजन करना है, या फिर कब तक मुझे स्कैन करना है, या फिर कब तक मुझे लोड करना है, या फिर कब तक मुझे स्टोर करना है. So there is some condition. So to use that condition, okay, so which condition I am using, which condition flag I am using? I am using a directional flag. अभी मैंने जब स्टेटस फ्लैग पढ़ाया था उसमें मैंने डायरेक्शनल फ्लैग नहीं पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको डायरेक्शन फ्लैग नहीं पढ़ाया था. नाउ दिस इज द टाइम टू एक्सप्लेन यू द डायरेक्शन फ्लैग. सो मैं जब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की जब एग्जांपल्स लूंगा ना, then in that case you will be able to understand the importance of the direction flag. तो आप सिर्फ एक बात रखना कि डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस, डायरेक्शन फ्लैग का जो भी कुछ स्टेटस रहेगा वो हिसाब से आपका SI या फिर DI विल बी इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा. लेकिन कितने से इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा? by 1. It will be incremented or decremented by 1. But now see here, अगर आपका डायरेक्शनल फ्लैग अगर 0 है, ये मैं खुद नहीं कर रहा हूं, ये कंडीशन के हिसाब से बनेगा 1 या फिर 0. अगर मेरा डायरेक्शन फ्लैग 0 है, आपका SI और DI क्या हो रहा है, कितने से इंक्रीमेंट हुआ है? 1 से. लेकिन 1 से कब? अगर 8 बिट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 8 बिट, और 2 से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 16 बिट. तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 1/2. तो अभी आपको समझ में आएगा. DF अगर 0 है तो SI और DI मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है. कितने से? 1 से. अगर आई एम डीलिंग विथ 8 बिट या फिर बाइट. और कितने से? 2 से. अगर आई एम डीलिंग विथ 16 बिट्स या फिर वर्ड. अगर मेरा डायरेक्शनल फ्लैग 1 है, ये मैं खुद नहीं करने वाला हूँ, सॉरी, डायरेक्शनल फ्लैग मैं खुद सेट नहीं करता हूँ, बिकॉज यू नो इट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग योर आंसर. आपका जो भी रिजल्ट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है स्टेटस फ्लैग में. तो डायरेक्शन फ्लैग अगर 1 है तो इसका मतलब SI और DI विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1 फॉर बाइट and decremented by 2 forward. That is the name. So you have to always see the status of direction flag. तो मैं जब एग्जांपल लूंगा ना, that time it will be more clear. तो आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है यहाँ पे. नंबर 1, आपका SI रजिस्टर होता है सोर्स ऑपरेंड, आपका डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता है DI रजिस्टर. डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ DF, SI and DI will be incremented by 1 or 2 depending upon whether you are handling 8 bits or 16 bits. If your DF is 0, SI and DI will be incremented by 1, and if your DF is equals to 1, SI and DI will be decremented. I hope you have understood. We'll move further now. So these are the important things. Everything is available in the Nagurkani. Okay. Yes, we'll start with the first one now. REP. अब जो मैंने बताया है आपको, अभी जो मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में बताया है, आपको अभी वो इम्प्लीमेंट करना है. नाउ दीज आर द सम इंस्ट्रक्शन सेट.
associated with the string manipulation instruction. In the exam, in the theory exam, the question can be asked about anything, about any instruction. So you have to be very careful. Okay, and you should know each and every instruction. आप एक भी इंस्ट्रक्शन को छोड़ नहीं सकते हो. मैंने फिर से बताया था कि मैं पूरा इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकता हूँ. So I want you to do something. So इसलिए whatever the instructions are more important, that thing I am taking. The other instructions I will be giving as an assignment. So come back to here. Now the first instruction is REP. The first instruction is REP. मैंने इसके लिए बताया था आपको. REP is the repetition. कब तक रिपीट करना है? एक कंडीशन रहता है. अभी ये देखो कंडीशन है यहाँ पे Z. The condition is Z. Okay. Or the condition is E. Or the condition is E. Or the condition is E. अभी ये देखो क्या है. Okay. आप ये REP Z. तो REP तो आपको पता है रिपीटेशन करना है. वो इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग का इंस्ट्रक्शन जो है ना, वो कंटिन्यूअस होते रहेगा. इसलिए मैंने वो इंस्ट्रक्शन के पहले REP मुझे लगाना जरूरी है. लेकिन कब तक होना चाहिए, इसलिए वो कंडीशन है. वो क्या कंडीशन है? Z. वो क्या कंडीशन है? E. वो क्या कंडीशन है? अभी इसका मतलब समझो क्या है. ओके. ना फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो आई विल बी यूजिंग विच इंस्ट्रक्शन? CMPS. और अगर मैं स्कैन कर रहा हूं, अभी मैं कंपेयर कर रहा हूं, इसका मतलब मैं दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहा हूं. और स्कैन कर रहा हूं, इसका मतलब मैं दो इंस्ट्रक्शंस को स्कैन कर रहा हूं. ओके. यहाँ पे देखो कंपेयर CMP, लेकिन देखो मैंने क्या लगाया? S. यहाँ पे भी S लगा है. इसका मतलब क्या है? कंपेयर करना है स्ट्रिंग को, स्कैन करना है स्ट्रिंग को. कंपेयर करना है स्ट्रिंग को, स्कैन करना है स्ट्रिंग को. इसलिए ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस है. इसलिए ये जो CMP है, बिकॉज हम CMP अलग भी यूज कर सकते हैं. अगर वो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम अलग से CMP यूज कर सकते हैं. लेकिन हम अगर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो हमको S लगाना ही पड़ेगा. ताकि माइक्रो प्रोसेसर को पता चलेगा कि ये कंपैरिजन हो रहा है वो स्ट्रिंग में हो रहा है, ना कि कहीं कुछ नंबर में हो रहा है, या फिर कंपैरिजन नॉन स्ट्रिंग ऑपरेशन में नहीं हो रहा है. ओके. इसलिए आई हैव टू इंक्लूड S. ओके. तो अभी ये देखो REP Z, REP E अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या रिपीट अगर मुझे करना है, अगर एक कंपैरिजन करना है मुझे स्ट्रिंग का, या फिर स्कैन करना है, लेकिन कब तक करना है? जब तक आपका जीरो फ्लैग जीरो नहीं होता है. इसलिए ये Z का क्या मतलब होता है? जीरो फ्लैग. तो मैं बोलते समय क्या बोलूंगा? रिपीट योर कंपेयर इंस्ट्रक्शन और रिपीट योर स्कैन इंस्ट्रक्शन until your zero flag is zero, until your zero flag becomes zero, okay. अब इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे आ जा. इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे आ जा. देखो, before I execute this instruction, your CX, now what is CX? CX is your काउंटर रजिस्टर. मैंने पहले बताया था, इट इज योर काउंटर रजिस्टर. और आपका काउंटर रजिस्टर इनिशियली, बिफोर आई एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, बिफोर आई एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, विच इंस्ट्रक्शन? कंपेयर CMPS या फिर REP Z CMPS. टू बी मोर स्पेसिफिक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी मैं इसको लिखने को टाइम होगा, मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता हूँ REP Z CMPS. ऐसा अगर इंस्ट्रक्शन है REP Z CMPS, तो मुझे पता चला कि मुझे कंपेयर करना है स्ट्रिंग को. और कब तक रिपीट करना है ये कंपैरिजन? जब तक आपका जीरो फ्लैग जीरो नहीं होता. तो मुझे बताओ, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के पहले आपका जीरो फ्लैग 1 है ना? ये देखो, आपका जीरो फ्लैग 1 है ना? यस. और एंड आपका काउंटर, अभी मैं बता, काउंटर रजिस्टर है ना, तो काउंटर रजिस्टर इज नॉट जीरो. योर काउंटर रजिस्टर इज नॉट जीरो. तो बाय डिफॉल्ट योर काउंटर, दिस इज बाय डिफॉल्ट, आपका काउंटर रजिस्टर जीरो नहीं है, और बाय डिफॉल्ट आपका जीरो फ्लैग 1 है.
तो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, while cx is not equal to 0 and 0 flag is equals to 1, repeat execution of the string instruction. कौन सा इंस्ट्रक्शन, ये वाला, ये रिपीट करो या फिर इसको एग्जीक्यूशन करते रहो जब तक आपका जीरो फ्लैग जीरो नहीं होता, जब तक आपका जीरो फ्लैग जीरो नहीं होता, जब तक आपका जीरो फ्लैग जीरो नहीं होता है। और दूसरी बात, आपका ये जो काउंटर रजिस्टर है ना, वो नॉन जीरो नंबर है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज बिफोर एग्जीक्यूशन। ओके, सपोज आपका CX, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आपका CX नॉन जीरो नंबर है, सपोज आपका CX है, सपोज इफ इट इज CX इज सपोज 5, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होने के पहले क्या सिनेरियो है, ये सिनेरियो है कि आपका काउंटर रजिस्टर 5 है और आपका जीरो फ्लैग 1 है और आपने अभी आपने ये एग्जीक्यूट किया, तो आपका CMPS कब तक चलते रहेगा, जब तक आपका जीरो फ्लैग जीरो नहीं होता, जब तक आपका जीरो फ्लैग जीरो नहीं होता है। और क्या हो रहा है, और एक बात हो रही है, आपका काउंटर रजिस्टर will be decremented by 1 for every execution। इसका मतलब क्या है अभी समझो, एक बार ये एग्जीक्यूट हुआ, तो आपका CX क्या हो जाएगा, अभी 4 हो जाएगा। ये देखो ना, CX -1, बाद में अभी सेकंड में एग्जीक्यूशन हुआ, क्योंकि मुझे तो रिपीट करना है ना, जब तक मेरा जीरो फ्लैग जीरो नहीं होता है। तो आपका काउंटर जो रजिस्टर, उसका क्या स्टेटस है, हर एक एग्जीक्यूशन में आपका काउंटर रजिस्टर 1 से डिक्रीमेंट होगा। तो पहले वो 5 था, अभी हो गया 4, फिर से एग्जीक्यूट करो, अब वो काउंटर रजिस्टर क्या होगा, 3, फिर से एग्जीक्यूट करो, वो क्या होगा, 2, फिर से एग्जीक्यूट करो, फिर वो क्या होगा, 1, फिर से एग्जीक्यूट करो, बाद में वो क्या होगा, 0। और जब आपका काउंटर रजिस्टर 0 होता है, दैट मीन्स अगेन यूर जीरो फ्लैग भी वो 0 हो जाता है। तो आपका एग्जीक्यूशन कब रुकने वाला है, आपका एग्जीक्यूशन रुकता है कब, जब आपका CX 0 हो जाता है और आपका जीरो फ्लैग भी 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा था, रिपीट CMPS और स्कैन अंटिल ZF इज इक्वल टू 0। तो आपके ये कंडीशन कभी भी अगर आती है, ओके, कभी भी, तो व्हाट आई मीन टू से दैट ये इंस्ट्रक्शन ये कब टर्मिनेट होगा, ये इंस्ट्रक्शन कब टर्मिनेट होगा, जब आपका ईदर, मैं इधर बोल रहा हूँ, ईदर योर CX बिकम्स 0 और योर ZF बिकम्स 0। ये दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, तो ये जो रिपीटेशन का काम चल रहा था वो रुक जाता है। ओके, so to terminate the program, to terminate the execution of the instruction, either of these two condition has to be fulfilled. One condition is your CX value should become 0, और CX value 0 कब तक, जब तक CX value 0 कब होंगी, क्योंकि आपको पता है एक बार एग्जीक्यूट किया, CX डिक्रीमेंटेड बाय 1, फिर से एग्जीक्यूट हुआ, your CX is डिक्रीमेंटेड बाय 1। तो देखो 5 4 3 2 1, तो ये एग्जीक्यूशन कब तक चलेगा, इधर आपका CX 0 नहीं होता या फिर और आपका जीरो फ्लैग जीरो नहीं होता, तो ये दो कंडीशन में वो चलते रहेंगे। ओके, अभी इसका उल्टा है इधर, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन जीरो, कब तक करते जाओ जब तक वो नॉन जीरो नहीं होता। तो देखो जीरो फ्लैग जब तक 1 नहीं होता, तो मुझे बताओ एग्जीक्यूशन के पहले जीरो फ्लैग 0 रहेगा ना, एग्जीक्यूशन के पहले जीरो फ्लैग 0 रहेगा, और आपका ये भी नॉन जीरो नंबर रहेगा, ये भी आपका नॉन जीरो नंबर रहेगा। और क्या लिखा है, रिपीट एग्जीक्यूशन, जब तक रिपीट एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, और हर एक एग्जीक्यूशन के बाद आपका काउंटर रजिस्टर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। सेकेंड एग्जीक्यूशन फिर से 1 -1, फिर से नेक्स्ट एग्जीक्यूशन -1। ये कब तक करते रहना है, जब तक आपका CX 0 नहीं बन जाता या फिर आपका जीरो फ्लैग 1 नहीं बन जाता। ओके, सो दिस इज नॉन जीरो, what is this E?
इज ऑल्सो इज नोन एज इक्वल। जब तक वो इक्वल नहीं होते, जब तक वो इक्वल नहीं होते, तो मुझे एक बात बतानी है, बिफोर यू एग्जीक्यूट, बिफोर एक मिनट, yes, so before you execute this program, now please pay attention, all of you pay attention, this is important, मैं जो बोल रहा हूँ, before you execute this program, you can do one thing, you can store some value into CX। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ना 5 बार हो, तो CX की वैल्यू मुझे 6 रखनी पड़ेगी, 6। तो बिफोर आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, आई हैव टू स्टोर 6 नंबर इनटू CX। तो आपको पता है अभी ये एग्जीक्यूट एक बार होगी तो CX में जो 6 है वो बाद में 5 हो जाएगा, फिर से एग्जीक्यूट होने के बाद 5 का 4 हो जाएगा, फिर से एग्जीक्यूट होने के बाद 4 का 3 होगा। ऐसे करते करते वो CX जब 0 हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको अगर टर्मिनेट करना है और अगर आपको चाहते हो कि वो 6 बार एग्जीक्यूशन करे या फिर 7 बार करे, डिपेंडिंग अपॉन दैट योर काउंटर वैल्यू रजिस्टर विल बी लोडेड विद सम नंबर। तो कहने से अगर मुझे एग्जीक्यूशन 5 बार करना है तो योर CX वैल्यू विल बी लोडेड +1, दैट इज 5 + 1 6। अगर मुझे वो इंस्ट्रक्शन 4 बार एग्जीक्यूट करना है तो व्हाट नंबर विल बी stored into the CX? 4 + 1, that is 5। so your one more number +1, एक से ज्यादा नंबर will be stored in the CX register। okay, so such type of viva questions also can be asked। okay, कि अगर मुझे 5 बार रिपीट करना है तो CX में मैं कौन सा नंबर स्टोर करूंगा? योर आंसर इज जितने बार एग्जीक्यूट करना है उससे +1 मुझे करना पड़ेगा, CX में डालना पड़ेगा। और 0 फ्लैग की अगर बात की, अगर कोई दूसरा मुझे कंडीशन एग्जीक्यूट करना है, सपोज मैं कुछ एग्जीक्यूट, सपोज मुझे कंडीशन को ट्रैक करना है कि मुझे ये रिपीट करना है कब तक, जब मेरा 0 फ्लैग 0 नहीं हो जाता है। ओके, तो वो कंडीशन भी मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ओके, तो यू हैव 2 कंडीशंस, इधर CX becomes 0 or 0 flag becomes 1 as far as REP-Z is concerned, and for as REP non-zero is concerned, it can be terminated when CX becomes 0 या फिर आपका 0 flag becomes 1, या फिर आपका 0 flag becomes 1। I hope you have understood this। So Yes, you require more reading of this। मैं जो भी सीखा था उसके बाद तुरंत अगर आप रीड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। We'll move further। अभी ये भी सिंपल है। अभी ये देखो, आपने अब तक मूव इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, आपने अब तक मूव इंस्ट्रक्शन पढ़ा था। अब अगर मैं ये मूव के साथ S लगाता हूं तो आपको पता चलता है कि आई एम यूजिंग दिस फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन, आई एम यूजिंग फॉर द स्ट्रिंग ऑपरेशन। अगर मैं इसके बाद B लगाता हूं तो आपको पता चलता है कि मेरा जो भी स्ट्रिंग है वो 8 बिट्स का है। और अगर मुझे W लगाता हूँ, ये W, तो मुझे पता चलता है कि वो स्ट्रिंग ऑपरेशन जो मैं यूज कर रहा हूँ, विच स्ट्रिंग ऑपरेशन? मूव। तो वो स्ट्रिंग कितने साइज की है? 16 बिट की है, इसलिए इट इज W मीन्स वर्ड। अभी मूव SB में देखो क्या हो रहा है, मूव SB में देखो क्या आ रहा है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इंस्ट्रक्शन आपने क्या लिखा, ये लिखा मूव SB, लेकिन आपको अभी पता नहीं सोर्स कहाँ पे है, डेस्टिनेशन कहाँ है, यानी मुझे कहाँ पे मूव करना है, आई डू नॉट नो। तो मैंने आपको पहले बताया था सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो। सो एक काम करो, यू जस्ट राइट डाउन द इंस्ट्रक्शन मूव SB, you just write down the instruction move SB and just write down 1 or 2 sentence because this is also important, तभी या फिर आपको समझ में आएगा। Please write down move SB और उसमें लिखो 1 byte of a string data, 1 byte of a string data stored in data segment of a string data stored in data segment
is copied into extra segment, is copied into extra segment. अभी यहाँ पे आपको एक बात पता चली कि मेरा स्ट्रिंग की साइज है 1 बाइट और मैं डेटा कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहा हूँ, डेटा सेगमेंट में से लेके एक्स्ट्रा सेगमेंट में. सो बाय डिफॉल्ट इट इज, बाय डिफॉल्ट डेटा सेगमेंट में से आप एक्स्ट्रा सेगमेंट में मूव कर सकते हो बाय यूजिंग दिस मूव एसबी. तो आपने क्या लिखा, 1 बाइट ऑफ अ स्ट्रिंग डेटा स्टोर्ड इन डेटा सेगमेंट इज कॉपीड इनटू एक्स्ट्रा सेगमेंट कॉमा अभी नेक्स्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, कॉमा एंड SI and DI are automatically incremented slash decremented by one depending on direction flag in bracket df. ओके, अभी इसका क्या मतलब है, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, इसका क्या मतलब है, पे अटेंशन. मैंने बताया था कि मेरा सोर्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन रजिस्टर मेंशन नहीं रहता है इन द इंस्ट्रक्शन. तो बाय डिफॉल्ट सोर्स इंस्ट्रक्शन इज मेंशन्ड इन SI एंड योर डेस्टिनेशन जहाँ पे मूव करना है वो कहाँ पे मेंशन होता है, वो होता है डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर में. ओके, दूसरी बात आपको पता है, अगर मैं मूव एसबी कर रहा हूँ तो मेरा डेटा सेगमेंट में जो भी मुझे मूव करना है 1 बाइट वाला डेटा, वो मूव कहाँ पे होगा, वो मूव होगा एक्स्ट्रा सेगमेंट में, ES. ओके, तो आपका DS डेटा सेगमेंट में जो भी मेमोरी लोकेशन है वो कौन बताएगा, वो बताएगा SI रजिस्टर. और एक्स्ट्रा सेगमेंट में कौन से मेमोरी लोकेशन में वो भेजना है वो कौन बताएगा, वो बताएगा डेस्टिनेशन इंडेक्स. तो आपको पता चल गया, सोर्स ऑपरेंड इज SI एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड इज DI. ओके, अभी यहाँ पे आ जाओ. अगर मैं MA लिख रहा हूँ तो मैंने पहले ही बताया था, MA का मतलब मेमोरी एड्रेस एंड बाय डिफॉल्ट डेटा सेगमेंट. तो जब डेटा सेगमेंट की बात आती है तो MA लिखता हूँ, और जब दूसरी बात आती है अगर एक्स्ट्रा सेगमेंट के बारे में तो वो E आता है, और अगर MAS लिखता हो तो स्टैक सेगमेंट की बात आती है, और अगर MAC लिखता हो तो कोड सेगमेंट की बात है. तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या डील करना है, MA फॉर डेटा सेगमेंट. सो मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा सेगमेंट, ओके, मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा सेगमेंट, एंड MA इज फॉर मेमोरी एड्रेस ऑफ द एक्स्ट्रा सेगमेंट अभी देखो क्या हो रहा है, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. इसके बाद मैं वाइंड अप करता हूँ. ओके, तो देखो आपका ऐसा है, रजिस्टर में आपका लोकेशन पता है, दैट इज सोर्स. तो ये जो है ना कैलकुलेशन, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, DS इंटू डेसिमल 16 नंबर प्लस SI, सो दैट विल गिव यू इफेक्टिव एड्रेस. ये सब इफेक्टिव एड्रेस के लिए, ये मैं आपको नया भी कुछ सिखा रहा नहीं हूँ, ये पुराना है. ओके, सो हाउ टू गेट द इफेक्टिव एड्रेस. सो DS इज मल्टीप्लाइड बाय 16 डेसिमल, या फिर 0 अपेंड कर दो और उसमें SI जो है उसको ऐड कर दो. वो ऐड होने के बाद आपको क्या मिलता है, 20 बिट्स ऑफ मेमोरी एड्रेस. कौन सा मेमोरी एड्रेस, डेटा सेगमेंट का. उसके नीचे आ जाओ, आपको अभी 20 बिट ऑफ मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट चाहिए. वो कैलकुलेशन कैसा करेगा, आपका DI जो 4 बिट का होता है उसको ऐड करना है एक्स्ट्रा सेगमेंट प्लस ये 16 बिट को मल्टीप्लाई करके, दैट इज 16 बिट से मल्टीप्लाई करो, 16 डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करो, या फिर 0 को अपेंड कर दो. तो ये जब प्लस होता है दोनों का, तब क्या आता है, 20 बिट ऑफ फिजिकल एड्रेस. किसका, एक्स्ट्रा सेगमेंट. ये दो बात पता चल गई. अब क्या हो रहा है देखो, फिर क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है.
MA का जो भी डेटा है वो जा रहा है MAE में, जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो आपने लिखा भी है। उसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे आ जाओ। अब ये देखो, अगर मैंने आपको बताया था ना, आपका DI और SI ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है, कितने से? 1 से। अभी मैंने 1 क्यों बोला है? क्योंकि आई एम डीलिंग विथ बाइट, आई एम डीलिंग विथ बाइट। और मैं अगर डील विथ कर रहा हूँ वर्ड से, तो यू विल से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाय 2, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाय 2। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं बाइट कर रहा हूँ, तो इट विल बी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाय 1। तो देखो, अगर डायरेक्शन फ्लैग 0 है तो आपका DI होगा +1 और आपका SI होगा +1। अगर आपका डायरेक्शन फ्लैग 1 है तो आपका DI होगा DI -1 और आपका SI होगा SI -1। वही नीचे आ जाओ। अब ये है वर्ड के लिए, ये सब सेम रहता है, लेकिन ये वर्ड के लिए है 16 बिट। ये देखो क्या लिखा है मैंने, MA +1 जाएगा MA में, MA +1 जाएगा MA में, और यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे E नहीं चाहिए। या फिर एक काम कर सकते हो, ये देखो, आप ऐसा करो, इसको रब करना है, दिस इज रॉन्ग। वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, वो जस्ट गिव मी वन मिनट, ओके। वो क्या होना चाहिए, that is MA will go into MAE, MA will go into MAE and MAE नहीं रहेगा यहाँ पे, MA +1 will go into MAE +1। I hope you have understood this। ये गलत हुआ था, अभी ये राइट हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके 8 बिट नहीं है, आपको 16 बिट यानी 2 8 बिट। तो MA का डेटा MAE में और MA +1 का डेटा MAE +1 में। MA में क्या है, 8 बिट ऑफ डेटा, दैट इज मूव इनटू MAE। बाद में नेक्स्ट 8 बिट डेटा, दैट इज MA +1 इज मूव इनटू MAE +1। अब देखो, डायरेक्शन फ्लैग अगर 0 है तो DI 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि मैं कितने 2 बाइट्स को हैंडल कर रहा हूँ ना, 1 वर्ड को, तो +2 होगा। और SI का क्या होगा, हाँ, और SI का क्या होगा, वो भी इंक्रीमेंट बाय 2 होगा, लेकिन कब? जब DF 0। और अगर DF 1 है तो क्या होगा, डिक्रीमेंट बाय 2 एंड डिक्रीमेंट बाय 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो। Parmeshwari madam, you can take the attendance. We'll continue this thing in the next lecture. We'll continue this in the next lecture. Parmeshwari madam is there? हॅलो सर. हाँ, मनीष परमेश्वर मॅडम आहे का? नाही आहेत सर. बरं ठीक आहे, फटाफट घेऊन जा अटेंडन्स. हो. रोल नंबर 1 1 present. 2 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 present. 4 5 5 present. 6 6 present. 7 7 present. 8 8 present. 9 8 present. 9 present. 10 10 present. 11 present. 11 present. 12 Present. 13